So now the next topic is the continuation is integral of a non-negative measurable function. If f is non-negative, मतलब f is greater than or equal to 0. साथ में क्या है? Measurable function defined on a measurable set E. Then we define integral of f is equal to supremum of integral of h and all h. They are less than or equal to f, where h is a bounded measurable function such that it vanishes outside a set of finite measure. Means इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो उस सेट का जो मेजर है वो लेस देन इंफिनिटी इज फाइनाइटली का है. अब बेटा इसमें ये यू हैव टू रिमेंबर हियर h इज नॉट अ सिंपल फंक्शन. हियर h is a bounded measurable function and it satisfies the property that the measure of all those points where h is not equal to 0, the measure is finite. ठीक है. That is, अभी आपको बताया h is a bounded measurable function which vanishes outside the set of finite. Now come to its properties. f को in terms of एक नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन को एक बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया. ठीक है. इट मीन्स जब भी इससे रिलेटेड थ्योरम होगी हम इंटेग्रल ऑफ f को हमेशा सुप्रीमम ऑफ f में ही express करेंगे. Supremum of h. So now we have if f and g are non-negative measurable functions defined on a set E, then what we have to prove the integral. देखो जब भी आप स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे स्केलर ने बाहर आ जाना, सम लोगे तो सम अलग अलग हो जाएंगे. अगर f g से छोटा है ऑलमोस्ट एवरीवेयर तो इंटेग्रल ऑफ f इज लेस देन और इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ g. नाउ लेट h बी ए बाउंडेड मेजर, क्योंकि आपने डिफाइन करना, अब CF फंक्शन है उसको डिफाइन करना, उसके लिए h चाहिए. तो h सबसे पहले हमने लिख लिया, इट इज अ बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन सच दैट इट फिनिशेस आउट. अभी इस पूरी लाइन का मतलब आई विल नॉट इसको मैं इस तरह से नहीं बोलूंगी मेजर ऑफ x बिलोंग्स, इट मींस इट वेनिशेस आउटसाइड अ सेट ऑफ फाइनाइट मेजर. ठीक है जी. अगर हम वो सेट लेते हैं, एक ऐसा सेट लेते हैं जिसका मेजर ही क्या है, इंफिनिटी है, तो उसमें फंक्शन h जो है वो वेनिश हो जाएगा. ठीक है. कहाँ वेनिश नहीं हो रहा? उस सेट के अंदर जिसका मेजर लेस देन इंफिनिटी है. सेम हियर. सो h आपकी रिक्वायरमेंट ch है, तो सेम सारा ch जो है वो चेंज कर देंगे. हियर c इज ग्रेटर देन 0. So you will put the formula CF की जगह CH आ जाएगा. Supremum CH is less than or equal to CF. So this becomes the C into integral of f. That is quite simple. अब अगला क्वेश्चन f और g से रिलेटेड है, मतलब दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शन का मतलब दो h चाहिए, h1 and h2. So let h1 and h2 be two bounded measurable functions on E with which vanishes outside the set of finite. So that h1 f से छोटा है, h2 is less than or equal to g, and their sum is less than or equal to f plus g, where h1 and h2 are bounded measurable function. अब पीछे वाली थ्योरम, ठीक है, जो पीछे कंसेप्ट था वो यही था. इट इज अ बाउंडेड, we have done Lebesgue integral of a bounded function over a set of finite measure. So h1 h2 are the bounded measurable function. वहां पे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही थी h1 और h2 पे, तो यहाँ पे हमने ये एज इट इज रिजल्ट लिख दिया. लेकिन हमने बनाना किसके लिए? f और g के लिए. So h1 plus h2 is less than or equal to f plus g. We have already taken. So their integral is less than or equal to h1 और h2 को सेपरेट कर देंगे बेटा, f plus g को भी नहीं करेंगे. ठीक है. सो यहाँ पे आप सुप्रीमम लगाएंगे, सुप्रीमम के बाद ये बन जाएगा इंटेग्रल ऑफ f प्लस इंटेग्रल ऑफ g इज लेस देन और इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ f. एक इनइक्वालिटी आ गई लेस देन वाली, अब हम करेंगे ग्रेटर देन. Now to prove the reverse inequality, let phi be a bounded measurable function on E such that phi is less than or equal to f plus g. With measure of A is less than infinity, where A, it is a set of all those points where phi x is not equal to 0. So this is quite different and typical. So now define the functions h and k. On दो फंक्शन डिफाइन किए. h is the minimum of f of x and phi x,
and kx is the difference of phi x and hx. अब phi यहाँ पे simple नहीं है, phi यहाँ पे bounded function है. Now we will prove the following result, that is h is less than f and k is less than g, and the modulus value of h is less than or equal to phi, and the modulus value of k is less than or equal to modulus value of phi. So now what is h? H is given to be minimum of f of x and phi. hx जो है fx और phi x का मिनिमम है, छोटा नंबर है. ठीक है जी, इसका मतलब जो छोटा नंबर है वो सेट के मेंबर से क्या होगा, छोटा होगा. तभी यहाँ पे लिखा एच एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज वन ऑफ द मेंबर, एच ऑफ एक्स इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द सेट. ठीक है जी, एंड एच एक्स इज द मिनिमम ऑफ, सो मिनिमम इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू वन पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द सेट. नाउ के एक्स इज गिवन टू बी phi x माइनस एच एक्स. अब अगर एच एक्स देखो, एच एक्स दो वैल्यूज देता है, एक एफ एक्स वैल्यू देगा, एक फाई एक्स, जो छोटा होगा वो वैल्यू देगा. ठीक है, हमें अब की एक्स को फाइंड आउट करना है, फाई एक्स माइनस एच एक्स. ठीक है, अब एच एक्स दो वैल्यू देगा, या एफ एक्स देगा या फाई एक्स देगा. एच एक्स फाई एच एक्स इज इक्वल टू, अगर एच एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा, अगर एच एक्स की वैल्यू फाई एक्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई एक्स आ जाएगा. ठीक है जी, so you can write it as phi x minus f of x if, अब एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये खत्म हो गया जीरो if एच एक्स इज इक्वल टू phi x. Now this is less than or equal to g. Why it is less than or equal to g? As we have already taken here the phi. What is phi? Phi is, we have already assumed in the first line that let phi be a bounded measurable function, so that phi is less than or equal to f plus g. हम किसको फाइंड आउट कर रहे हैं, phi माइनस f को. तो phi माइनस f किससे छोटा है, g से छोटा है, and g is non-negative, therefore it is less than or equal to g. So we have proved the first part, that fx is first part was hx is less than or equal to f of x, and kx is the second part in the first case is less than or equal to g. Now the b part, b में मॉडुलस प्रूव करना है. ठीक है, hx का मॉड ले लिया, इट मीन सब तरफ मॉड आ गया. अब hx दो वैल्यूज दे रहा है, द वन इट इज गिविंग f of x, अदर इट इज गिविंग phi x. देखो ध्यान से, hx क्या है, hx is the minimum of f of x and phi x. यानी hx की या तो वैल्यू f of x से होगी, या hx की वैल्यू phi x होगी. ठीक है, अब कंडीशन क्या है, f of x कब होगी, जब ये छोटी होगी, सबसे छोटी होगी. किससे छोटी होगी, phi x से छोटी. phi x कब आएगा, जब phi x किससे छोटा होगा, लेस देन और इक्वल टू. ठीक है, तो तभी ये बार बार लिख रहे हैं एच ऑफ एक्स का मॉड. तो चलो मॉड दोनों तरफ आ जाएगा, इट इज गिविंग द वैल्यू दिस, दिस इज गिविंग द वैल्यू दिस, व्हेन एफ ऑफ एक्स किससे छोटा है, फाई एक्स से छोटा है, और ये कब देगा, जब फाई एक्स किससे छोटा है, एफ ऑफ एक्स से छोटा है. ठीक है जी, राइट. उसके बाद and this is less than or equal to, I will continue tomorrow the same topic.